Hi guys, so let's start today's session on Learn AI series. So आज का टॉपिक रहेगा AI ML में हम थोड़ा सा we will learn through the practical examples. Like अब हम इसमें एक tool use करेंगे which is called Orange tool, which is called Orange tool, which is quite useful in terms of data mining. Orange tool. So we'll be using Orange tool, which is quite useful in data mining. अब डेटा माइनिंग में जो है हम बेसिक्स अगर देखें तो वी विल बी looking to data science, and we will be looking to computer vision. तो बेसिक चीज़ें देखेंगे, and we will also be looking to NLP, natural language processing. अब now to start with the tool, let's basically क्या है, what the algorithms they use, what kind of regression or classification they use. अब classification regression सुनने में it's like what exactly it is, so it's better कि हम वो सारी चीज़ें भी थोड़ा सा अगर समझेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा once we start using the tool. So tool को यूज़ करने से पहले let's understand the basics behind the data mining. अब data mining में it's अगर हम देखें तो data mining is two things. What is data? Data क्या होता है? Data is can be structured data, unstructured data. From various streams we are getting the data, like data warehouse, data lakes, which can have any forms of data. And what is mining? Mining जैसा कि शब्द in itself ही बोलता है कि what is mining means कि to mine the data means to extract the useful information, the meaningful information. Extract useful or meaningful information from data. So this is the basic thing about. Up in data mining, what we used to do, the first step is data collection. Okay, so we have to collect the data. कितनी भी जगह से आ सकता है आजकल तो अगर आप देखें तो सोशल नेटवर्क्स एंड एवरीवेयर दी, जैसे कि हमने पिछले अपने कुछ सेशंस में देखा था कि डेटा इज़ एवरीवेयर. ओके, सो डेटा हमारे चारों तरफ है. हम स्विगी से ऑर्डर करते हैं तो डेटा जनरेट होता है, हम अमेज़ोन से ऑर्डर करते हैं तो डेटा जनरेट होता है, हम मोबाइल फ़ोन अपना यूज़ करते हैं तो डेटा जनरेट होता है, हम इतनी कॉलिंग्स करते हैं तो डेटा जनरेट होता है. तो हमारे को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमें किस तरीके का डेटा कलेक्ट करना है. अब डेटा कलेक्ट करने के बाद आता है डेटा क्लीनिंग. यू हैव टू क्लीन दैट डेटा एंड आफ्टर दैट यू process that data in meaningful information. Means it can be through visualization or any other mechanism. You are creating charts or something. And now what is happening now with, there are different tools which are available in the market. Like आज जो हम स्टडी करेंगे ऑरेंज टूल की भी, और देखेंगे कितना आसानी से हम बिना कोडिंग के, लो कोड और नो कोड की बात ही नहीं है इसमें, तो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर लाइक ऑर्केस्ट्रेटर वाले एग्जांपल जो हमने पहले देखे थे N8N, वैसे ही हम यूज़ करेंगे ऑरेंज डेटा टूल को. बट उससे पहले लेट्स इन डेटा माइनिंग
हम अपने डेटा को किस तरीके से वी कैन रिप्रेजेंट इज थ्रू क्लासिफिकेशन and regression. So these are the the ways where we when we are doing the data mining. So these are the two ways we can either classify or regression. Okay, now what is classification? In classification there are many algorithms where we categorically classify our data. Like इसमें हमारे पास KNN which is nearest neighbors algorithm है, और डिसीजन ट्रीज आती हैं हमारी इसमें, और SVN आते हैं हमारे जो वेक्टर रिलेटेड जो हमारी एल्गोरिथम्स होती हैं, SVM मॉडल्स. Okay, so we will be learning some logical regressions as well. And now what is regression? The thing is that regression is when we are doing the analysis through numerical value, when we are predicting with numerical value. अब numerical value means what? कि for example हमारे पास डेटा है, मीन्स हमारे पास हाउसेस का डेटा है, वेयर की साइज ऑफ हाउस. ओके, और उसके बेसिस पे वी हैव टू प्रेडिक्ट द प्राइस. Price can go up or down. Okay, so this kind of analysis is known as regression analysis. इसी में ही एक regression analysis में ही we will learn linear regression. What is we will be learning? Linear regression. ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं algorithms in the Orange tool and in our AI. So we should be aware about कि what exactly these terms are, और इनको हम बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल से समझेंगे तो एटलीस्ट हमारे को कोर पता होगा कि at the base level what are the things getting utilized. So these are the things which we are going to learn. Like linear regression में क्या होता है कि इस तरीके का ग्राफ होता है एंड दी वैल्यूज़, एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है विच इज़ वी से x, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसमें y, एंड एज x increases y is increasing. So this is known as positive regression. Like for example houses के prices are increasing day by day, so it's a positive regression. And if our graph is like this, so that means it is called negative regression. Negative regression भी होता है. नेगेटिव रेग्रेशन, आप फॉर एग्जांपल आप एक कार खरीदते हैं और कार जैसे जैसे पुरानी होती है तो उसकी वैल्यू डाउन होती जाती है. तो बोथ वेज दिस रेग्रेशन वर्क्स, इज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव. और रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो हमारी इक्वेशन होती है तो दैट विच इज़ ओके, y is equal to mx plus b. So this is our okay, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है. Okay, let me just erase some of the things and then write. So इसकी जो इक्वेशन होती है that is called y is equal to mx plus b. This is our y. Now it is visible. Actually क्या हो रहा है कि when I am writing, the writing pad is small.
so that's create a problem sometimes. So y is equal to, अब y क्या है, वो जैसे कि हमने बताया कि एक पैरामीटर x होगा, एक पैरामीटर y होगा, एंड m इज़ कॉल्ड स्लोप. स्लोप मीन्स कि x if increases by 1, what is the amount of y to be increases. Okay, b is called intercept, which is when x is equal to 0, तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी. बिकॉज दिस इज़ समथिंग लाइक, आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हाउसेस का हम प्राइसेस प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी. बट दिस वे यू नो दिस prediction analysis works. Okay. सो अब इसी तरीके से अगर हमें कोई चीज़ भी प्रेडिक्ट करनी है तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. अब एग्ज़ाम्पल हम क्या लेते हैं कि व्हाट वुड बी दी यू नो साइज़ ऑफ, एक हम ब्रेड लेते हैं डिफरेंट साइज़ की. फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रेड है 8 इंच की, एक ब्रेड है 10 इंच की, और एक ब्रेड है 12 इंच की. ओके, नाउ दिस इज़ द बेसिक एग्जांपल ऑफ यू नो टू. अब नाउ वी विल क्रिएट विद दिस काइंड ऑफ डेटा. और जो हमारे पास इस तरीके का डेटा है जहाँ पर हमारे पास साइज़ है और उसका प्राइस है. ओके, सो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा x इज इक्वल टू साइज़, और उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा y विच इज़ प्राइस. सो अब हम इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई और साइज़ की ब्रेड अगर हमारे पास आती है, ठीक है, तो उसका प्राइस क्या होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल 18 इंच की आ जाती है या 15 इंच की आ जाती है, तो उसका प्राइस हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर दिस सेशन. ओके, सो द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम कि वी हैव टू कलेक्ट द डेटा. ये डेटा है हमारा. ओके, अब क्लीन अप अगर बहुत सारा डेटा होगा तो क्लीन अप भी करना पड़ेगा. एंड देन वी हैव टू यू नो कैलकुलेट, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, एंड देन वी विल बी दी प्रेडिक्टिंग द प्राइस विद द विजुलाइजेशन. हम इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं थ्रू ग्राफ, इस तरीके से. ये ठीक है ना कि भाई ब्रेड की जो लोफ है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू है वो क्या होगी. ओके, सो एज दीज आर दी फॉर्मूला, समटाइम आई ऑल्सो रिवाइज फ्रॉम the things which are there. Okay, I don't know why my digital pen is not working well today. ओके, तो हम इसको ऐसा करते हैं, हम एक इसकी हम एक टेबल बना लेते हैं. ठीक है, तो टेबल में हम अलग अलग साइज़ेस की ब्रेड लोफ रखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइज़. दिख रहा है? ओके, यहाँ नहीं आ रहा है. लेट मी ब्रिंग इट डाउन. साइज़ आ गया. ठीक है, थैंक यू. साइज़, अब ब्रेड है हमारे पास 8 इंच, ओके, एंड 10 इंच एंड 12 इंच. यहीं लिख लेते हैं इसके. ठीक है, अब दिस इज़ द साइज़ ऑफ ब्रेड. अब इनके हम प्राइसेस लिख लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 8 इंच की ब्रेड जो है इसका हम प्राइस लिख लेते हैं, दैट इज़ 10, इट्स प्राइस इज़ 13 एंड इट्स प्राइस इज़ 60. ओके, तो ये साइज़ जो हो गया वो हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया. ओके, सिंपल. ओके, सो दिस इज साइज is x and this is y
is the price. Okay, I think now it is fine. मैं इसको थोड़ा सा I have to shift a bit. Let me see if I can do that. You able to, if you are able to see it. Okay, now it is looking a bit better. Okay, now we have to find the mean of x and we have to find the mean of y. The mean of x means 8 plus 10 plus 12 divided by 3, which is equal to 10. Okay, and mean of y is 10 plus 13 plus 16 divided by 3, which is 30. Okay, now we have to find deviation of x and deviation of y. Okay, so deviation of x and deviation of y. Okay, so deviation of x means जो mean of x है minus that first में 10, 8 minus 10. Okay, so which is equal to -2. Okay, and second is 10 minus 10, which is 0, and third is 12 minus 10, which is 2. Similarly हम इसका निकाल लेंगे प्राइस का. 10 minus 13 is equal to -3. 13 minus 13 is 0. Okay, so it's creating a problem. Okay, and 16 minus 13 is equal to 3. Okay, now what we have to do, we have to find out the product of deviation, and then we have to also find the sum of the deviation, and we have to find the square of deviation variance of x. Okay, so product of deviation हम कैसे निकालेंगे? Product of deviations. Okay, so there's a 2 into 3 is equal to 6, 0 into 0 is equal to 0, 2 into 3 is equal to 6. Okay, now we will sum these deviations. Sum कर लेंगे, sum of deviation, so which is coming around 12. Okay, now we will say square of deviation x, ये हमारा यूज़ होगा. तो एक है -2, वो उसको स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा. ओके, सेकंड है 0, तो वो 0 ही होगा, एंड थर्ड इज़ 2, उसका 4 हो जाएगा. ओके, सो ये थोड़ी सी वैल्यूज़ हमें निकालनी होंगी टू प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ अनदर ब्रेड लोफ. ओके, नाउ अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड m. m क्या होता है? m का जो फॉर्मूला होता है m, विच इज़ लो सम ऑफ प्रोडक्ट डिविएशन. ओके, तो जो हमारी प्रोडक्ट करके आई थी, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ x. सो सम कितना आया था? 12, और ये ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 8. तो हमारा m हो गया 1.5. दैट मीन्स अगर मैं एक यूनिट x की बढ़ाऊँगा तो मेरा y कितना बढ़ेगा? 1.5 से. ओके, सिमिलरली अगर मेरे को इसमें अब b निकालना है, b इज़ इक्वल टू y mean of y, okay, minus m into mean of x. अब मेरा mean of y क्या था ऊपर जो मैंने निकाला था? दैट इज़ 13, माइनस m क्या है मेरा? 1.5 into mean of y, mean of x is 10, so that means is 15. 13 minus 15 is equal to -2. that means जब मेरा x 0 होगा तो मेरा y क्या होगा? -2. अगर मैं इसको एज अ ग्राफ सिंपल तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूँ इस तरीके से, दिस इज़ x
एंड दिस इज़ वाई। तो मेरा जब x 0 है तो y को मेरे को इसको नीचे लाना पड़ेगा -2, ओके। एंड सिमिलरली आई कैन ड्रॉ अ ग्राफ वेयर वी विल सी, जब मेरा x इज़ 8 इंच तो मेरा y कितना है, y इज़ 10, ओके। सो दिस इज़ द डेटा पॉइंट। फिर उसके बाद x अगर मेरा 10 है तो y 13 है, और x अगर 16 है तो y कितना है, x 12 है तो y इज़ 16। सो इस तरीके से मैं अपने प्लॉट्स विजुलाइज कर सकता हूँ। अब सिमिलरली अगर मेरे को प्रेडिक्ट करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को थोड़ा सा बड़ा एक ऑर्डर आता है, बड़ी ब्रेड बनानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ समबडी कम्स एंड से कि आई नीड अ 20 इंच ब्रेड, 20 इंच, ठीक है। तो हमारा फार्मूला सिंपल है। नाउ लेट मी रब दिस पर्टिकुलर एरिया एंड सी। तो हम फार्मूला वही लगाएंगे, y इज़ इक्वल टू mx प्लस b। अब हमारे को ब्रेड जो है दैट इज़ x, दैट इज़ 20, और मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। तो y इज़ इक्वल टू m इज़ 1.5 एंड x इज़ 20, और b कितना है मेरा -2। तो 1.5 इंटू 20 इज़ 30 एंड -2 विच इज़ इक्वल टू 28। सो दैट मीन्स कि अगर मेरे को 20 इंच की ब्रेड का प्राइस क्या प्रेडिक्ट आ रहा है, हो रहा है, दैट इज़ 28 रुपीज़। सो इस तरीके से वी यूज़ टू वी कैन प्रेडिक्ट द प्राइसिंग ऑफ एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा विच वी हैव। सिमिलरली अगर हम देखें व्हाट इज़ द लॉजिकल रिग्रेशन। अब लॉजिकल रिग्रेशन में क्या होता है, if we talk about logical regression। अब लॉजिकल रिग्रेशन में क्या होता है, लॉजिकल रिग्रेशन में वैल्यू वुड बी येस और नो, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ वी से कि भाई आई एम स्टडिंग फॉर 2 hours, whether I will be passing in my test, yes or no। so बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि लाइक आई स्टडी एंड पास और फेल। इफ आई स्टडी 2 hours आई विल 0 और 1, इफ आई स्टडी 4 hours 0, इफ आई स्टडी 5 hours इट इज़ 1, ओके। सो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू जो प्रेडिक्ट करते हैं दैट इज़ हैविंग अ लॉजिकल बूलियन वैल्यू विच इज़ कॉल्ड 0 और 1। सिमिलरली अगर लोन की एप्लीकेशंस में देखें तो दैट मीन्स कि वॉट एवर द वे वी अप्लाई आवर लोन, कि हमारा लोन पास होगा या नहीं होगा, एंड रिज़ल्ट क्या होता है, येस और लॉजिकल रिग्रेशन। सिमिलरली हम एक और एल्गोरिथम देख लेते हैं, KN, नियरेस्ट नेबर। अब नियरेस्ट नेबर में क्या होता है कि वी डिफाइन दी जो भी हमारे नियर है उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जांपल लेते हैं नेटफ्लिक्स का और प्रेडिक्ट करते हैं कि वेदर दैट पर्टिकुलर मूवी उसका जो जॉनर है वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक हमारे पास डेटा है, so there is IMDb रेटिंग एंड ड्यूरेशन है मूवी का कुछ, एंड इसका जॉनर क्या है, ओके। सो फॉर एग्जांपल IMDb रेटिंग, हम अभी कुछ नई मूवीज़ ले लेते हैं, MI मोशन इम्पॉसिबल की रेटिंग है 8, उसकी ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल 160 मिनट्स के आसपास की हम ले लेते हैं, एंड इट इज़ जॉनर इज़ एक्शन, ओके। फिर उसके बाद हम एक और मूवी ले लेते हैं जो इतनी ज़्यादा
वैसी नहीं थी, बट लेट्स सी, लाइक जुरासिक पार्क, उसका हम ड्यूरेशन ले लेते हैं 170 एंड वी से इट वाज आल्सो एन एक्शन मूवी. Okay. And we take another movie, कौन सी ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वी टेक एवेटार. एवेटार की रेटिंग विल से 9 एंड एवेटार and we'll say its running duration is 155 minutes and it is action. अभी कोई और सा भी ले लेते हैं इसमें, ठीक है, इसे हैरी पॉटर. क्योंकि इसकी ड्यूरेशन इज़ 168 एंड इट्स अ ड्रामा. ठीक है, सो अब हमारे पास ये डेटा है. अब हमारे पास एक और मूवी आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वी गॉट सुपरमैन. और हमें तो मालूम है कि इसका जॉनर क्या होगा, बट थ्रू दिस मॉडलिंग टेक्निक, थ्रू दिस एल्गोरिथम्स, व्हाट इज़ दी इसकी रेटिंग ज़्यादा चली नहीं थी मूवी, रेटिंग 7.4. सो इसका जॉनर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास डेटा है उसको हम KNN एल्गोरिथम से उसको डिफ़ाइन करेंगे एंड देन वी प्रेडिक्ट कि जो भी इसका नियरेस्ट नेबर होगा वही उसका इस के नियरेस्ट नेबर में यही तरीका होता है कि जो भी उसके नियरेस्ट है. कैलकुलेशन एल्गोरिथम रन करने के बाद हम वी यूज टू डिफ़ाइन द मूवी जॉनर अकॉर्डिंग टू दैट. तो इसके लिए जो हमारा डिस्टेंस यूक्लिडियन मेथड है, यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला, आप लोगों ने आई थिंक 10th या 12th में पढ़ा होगा, 11th में. तो उसमें क्या होता है कि एक जो भी वैल्यू होती है उसको हम x1 मान लेते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर. तो अब इसमें हम एक वैल्यू को x मान लेते हैं, x1, एक वैल्यू को y1 मान लेते हैं. ओके, जैसे अब हमारे पास मूवी की ड्यूरेशन है और हमारे पास मूवी की रेटिंग है, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करना है उसकी वैल्यू क्या रहेगी. सो अगर हम इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं हर एक मूवीज़ के साथ और फिर देखते हैं कि नियरेस्ट क्या है. ओके, सो पहला वाला हम x एंड y, ओके, x2 y2. ओके, सो अगर हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं फॉर डिस्टेंस, फार्मूला हम लगाते हैं फॉर मूवी mi के साथ. ओके, सो फार्मूला तो यही है. अब 7.4 की रेटिंग है उसकी और इसकी रेटिंग है 8 प्लस इसकी लेंथ क्या है मूवी की 114 माइनस 160 का स्क्वायर. ओके, अब इसकी वैल्यू जो है हमने निकाली हुई है लगभग 46 के आसपास है. ओके, अब नाउ डिस्टेंस फार्मूला वी विल अप्लाई विद जुरासिक पार्क. तो इसके साथ लगाते हैं 7.4 माइनस जुरासिक पार्क की रेटिंग 6.2 प्लस ये तो सेम रहेगा एंड देन 170 का स्क्वायर. सो इसकी वैल्यू लगभग है 56. ओके, ऐसे ही तीसरी एवेटार के साथ निकालते हैं डिस्टेंस विद एवेटार. ओके, so we'll say 7.4 minus what is its rating is 7.2 plus 114 minus 166 a square and it is coming around 54. Similarly, distance formula with last Harry Potter, which is coming from 7.4 minus 8.2 का स्क्वायर प्लस 114
is 155 का स्क्वायर विच इज़ कमिंग अराउंड 41. सो अब KNN में क्या है, या तो हम फर्स्ट नेबर से देखें या 5 से देखें या 3 इज़ द बेस्ट. सो अगर हमें 3 नियरेस्ट देखने हैं तो 41, 46 एंड 54. तो अगर हम देखें तो ये दिस इज़ ड्रामा, दिस इज़ एक्शन एंड दिस इज़ ऑल्सो एक्शन. सो मेजॉरिटी विंस. सो दैट मीन्स कि अगर हमें इसकी जॉनर प्रेडिक्ट करना है इस मूवी का, तो वो कौन सा हम प्रेडिक्ट करेंगे, एक्शन. सो इसका जो जॉनर हो जाएगा विच इज़ कॉल्ड एक्शन थ्रू आर KNN algorithm. Okay, so this way we predict, we calculate with Euclidean distance learning formula how to predict the things. अब बेसिकली क्या है कि नियरेस्ट नेबर जो है, इससे पहले हमें क्लस्टरिंग भी करनी होती है. फॉर एग्जांपल, एंड अगर हम एक डेटा, हम बैंक का एग्जांपल देखें कि इसको रब कर लेते हैं, तो इससे पहले हमें के मीन्स को भी समझना पड़ेगा. KNN से पहले अगर हम उसको भी, हमारा क्लैरिटी है, बिकॉज इसमें हैंड इन हैंड चीज़ें चलती हैं. फॉर एग्जांपल हमने देखा नियरेस्ट नेबर से हम निकाल सकते हैं, वी आर क्लासीफाइंग. तो क्लस्टरिंग में क्या है, पहले हम क्लस्टर्स बना लेते हैं. हमें क्लस्टर्स के लिए जो डेटा होगा तो छोटा, वी टेक सम ऑप्टिमम साइज टू टेस्ट इट, मीन्स क्लस्टरिंग बनाते हैं. उसके बाद हम पहले हमने अपने डेटा को ट्रेन करते हैं. ट्रेन मीन्स हमने क्लस्टर बनाए. फिर उसके बाद हम टेस्ट करते हैं विद द KNN, नियरेस्ट नेबर क्या है, और चेक करते हैं कि यह प्रेडिक्शन हमारी सही हुई है या नहीं. विद द एंड क्लस्टरिंग इज़ डन ऑन विच इज़, क्लस्टरिंग इज़ कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग. उसके बाद जब हम इनको क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग, बिकॉज क्लस्टरिंग करने के बाद वी आर हैव डन द लेबलिंग ऑफ द डेटा. Okay, so that is where we can easily predict the things. So अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक शॉपिंग का डेटा लेकर के हम उसको समझ सकते हैं. वैसे और भी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, जैसे नैव बेस क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ बेसिकली वर्क्स ऑन दी प्रोबेबिलिटी. तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई गेम खेल रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन, whether we will be able to play game or not, whether it's football or cricket. So that is basically based on the probability. So let's first see how it's going to be a big session, long session. Sorry for that. So K means clustering. क्या होता है? K means clustering. Okay. तो इसमें क्या होता है कि हम ओके, फिर से ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, तो मैं इसको इसके नीचे थोड़ा सा लिखता हूँ. ओके, सो के आ गया. के मीन्स क्लस्टरिंग. जैसे कि आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल ऐसे डॉट्स ग्राफ्स में, और एक जगह ऐसे डॉट्स, तो हम बोल सकते हैं एक क्लस्टर हमारा ये है और एक क्लस्टर ये है. तो अब इन दोनों क्लस्टर्स में होता क्या है कि एक टाइप का ही दे फॉर्म्स अ ग्रुपिंग बेसिकली. सो अब ये ग्रुपिंग हमारी कैसे बनती है, हम उस चीज़ को में हम देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव सम डेटा ऑफ आवर, अमेज़ॉन का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं बहुत सिंपल सा, कि हमारे पास वी हैव द कस्टमर डेटा. ओके, एंड वी से दैट they are, just give me a second, they are, what they are doing, they are buying the things, the buying capacity. Okay, so we take a table. Okay,
कस्टमर C1 एज पे ले लेते हैं एंड अमाउंट पे ले लेते हैं. ओके, तो एज इज़ 20, अमाउंट इज़ 500. कस्टमर C2 एज इज़ 40, अमाउंट इज़ 1000. ओके, C3, C4, C5, C6 and C7. okay, so it is 30, 18, 28, 35 and 45. This is 1000, this is 800, this is 300, this is 1200, this is 1400 and 1800. ओके, सो अब की मीन्स क्लस्टरिंग में क्या है कि आपको मिनिमम हम स्टार्टिंग कर सकते हैं 2 क्लस्टर से. फॉर एग्जांपल क्लस्टर नंबर 1 एंड क्लस्टर नंबर 2. ओके, एंड हमें सेंट्रॉइड्स पिक करने होते हैं कि, और वो हम रैंडमली चलिए हम पिक कर लेते हैं. पहला हम C1 में हम पिक कर लेते हैं 20 एंड 500 और C2 में हम पिक कर लेते हैं 40 एंड 1000. पहले 2 कस्टमर को ही पिक कर लेंगे. अब उसके बाद हम बोलते हैं कि भाई हमने रैंडमली सेंट्रॉइड तो पिक कर लिया है. उसके बाद वी आर ट्रेनिंग आवर विद मॉडल विद दिस डेटा. तो C3 कहाँ पे लैंड करेगा? अब C3 is something which is we have to calculate. So उसके लिए Euclidean formula we will use. So C3 is our x2 and y2, x1 और y1, sorry. Okay, and this becomes, हम इन दोनों से देखेंगे कि कहाँ पे that is falling nearest. Okay, so we will calculate the distance. Okay, so distance formula is like d is equal to x1 minus x2 का स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का स्क्वायर. ओके, नाउ वी हैव द C3 के उससे निकालते हैं हम पहले क्लस्टर का. तो C3 में दिस इज़ 30 minus 20 का स्क्वायर, दिस इज़ 800 minus 500 का स्क्वायर. तो देखा जाए तो इसमें लगभग 300 का स्क्वायर बन रहा है, राइट? 300 का स्क्वायर बन रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है. नाउ वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस विद दिस C2. अब C2 से कंपेयर करेंगे तो दिस इज़ 30 minus 40 का स्क्वायर प्लस 800 minus 1000 का स्क्वायर. तो इसमें देखें तो इसमें डिस्टेंस 200 आ रहा है और इसमें 300 आ रहा है. दैट मीन्स जो C3 है दैट इज़ मोर नियरर टू दिस क्लस्टर C2 क्लस्टर. तो हम बोलेंगे कि ये वाला कस्टमर इस वाले क्लस्टर में जाएगा. ओके, सो दैट मीन्स 30,800 विल बी गोइंग हियर. नाउ वी हैव डन दिस. Now this second part is we have to update our centroid wherever the customer is going. So we have to update the centroid. So centroid update करने के लिए क्या है? This 40 plus 30 इसका मीन निकालेंगे. 40 plus 30 is equal to 70 by 2. तो हमारा नया centroid हो गया 35. And this is 1000 plus 800 by 2, that is 900. So now this सेकेंड कस्टमर व्हेन वी आर पिकिंग, सो अब हम उसको C1 के लिए तो यही डेटा यूज़ करेंगे, बट C2 क्लस्टर के लिए सेंट्रॉइड विल चेंज दिस. और अगर हमारा कस्टमर अब C1 में जाता है तो हम उसका सेंट्रॉइड फिर अपडेट करेंगे. एंड दिस प्रोसेस गोज़ ऑन टिल द टाइम ऑल दिस डेटा इज़ मीन्स ऑन दिस ऑल द वैल्यूज़ ऑफ डेटा इट इज़ ट्रेंड. सो वंस इट इज़ ट्रेंड तो क्या होगा, जब हम इसको लाइव पे टेस्ट करेंगे तो जब भी हमारे पास कोई नया कस्टमर आएगा, सो विल जस्ट टेस्ट विद KNN
एंड क्लासीफाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर यही हमारी लोन एप्लीकेशन है और इसमें हम बोलते हैं कि भाई C1 वाले को लोन मिलेगा और C2 वाले को लोन नहीं मिलेगा क्लस्टर को। अब कस्टमर के डेटा के अकॉर्डिंग वो कहाँ फॉल कर रहा है, तो दैट्स वेयर फर्स्ट वी ट्रेन आवर मॉडल, उसके बाद हम अपनी प्रेडिक्शन बहुत ईजिली कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी कैन कैलकुलेट ऑल दीज जो हमारे पास लाइव डेटा आता है उसके बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेनिंग वहाँ रोक देंगे। तो अगर हमारे पास कोई आउटलायर आता है सो देन अगेन मीन्स क्लस्टर, जैसे अभी हमने 2 बनाए हैं, अब हम क्लस्टर 3 भी बना सकते हैं। सो एवरी टाइम लाइक in the Amazon also, when we are finding the fake feedbacks, because that is now more common. So there are certain algorithms like this only, where they classify whether it is a fake feedback or it is a genuine feedback. So on the basis of certain parameters they used to check, they used to calculate, and they used to see कि भाई इसको हमें कहाँ पर रखना है, which cluster we have to put it. So on the basis of that there are many things which comes whenever we are doing machine learning in artificial intelligence. There are many things which comes to our way, where there are certain basics definitions. So like mean, like बहुत ज़्यादा यूज़ होता है mean, median, mode and range. सो अब ये सारी चीज़ें होती क्या हैं? वैसे तो हमने अपने व्हेन वी हैव स्टार्टेड आवर स्टडी, ओके फिर ऊपर चला गया थोड़ा सा, ओके जस्ट सॉरी। सो व्हाट इज़ मीन? नाउ आई चेंज द कलर हैज़ मीन, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, रेड कलर ही ज़्यादा बेटर है। सो वी सी मीन आ गया, ओके, मीडियन, मोड एंड रेंज। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई डेटा है एक 2 3 4 5 8 9 32 कुछ भी ले लिया हमने, जो भी है ठीक। अब हमें इसका मीन निकालना है। मीन इज मीन्स लाइक एवरेज। ओके, सो विल ऐड ऑल दीज वैल्यू, विल डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 अकरेंस एंड दैट बिकम्स आवर मीन। ओके, अब मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिड वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है? 7, तो हमारी मिडल वैल्यू क्या होगी? विच इज़ 8। सो दैट बिकम्स आर मीडियन, विच बिकम्स आर मीडियन। एंड ये ऑर्डर में होनी चाहिए, हमें इसको ऑर्डर में करना पड़ेगा। ओके, और फिर उसके बाद हमारा मोड क्या होता है? मोड फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो वैल्यू सेम थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है 2 3 4 3 5 3 6 8। ओके, सो मोड क्या होता है कि जिस वैल्यू की अकरेंस सबसे ज़्यादा है, विच दैट बिकम्स आर मोड। सिंपल। ओके, रेंज क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारी वैल्यू है, ये वाली हमारी जो सीक्वेंस थी। ओके, अब इसमें जो मिनिमम वैल्यू होती है 2 एंड दी मैक्सिमम वैल्यू 2 एंड 32। सो 2 और 32 का डिफरेंस क्या हुआ? दैट इज़ 30। सो 30 विल बिकम आर रेंज। ओके, सो दीज आर दीज बेसिक terms which are more commonly used when you are learning the when you are on the path of artificial intelligence and you are learning machine learning as well. Okay, so please take care on all these things, and next time when we will be meeting, I will be walking you through to the orange tool. Till then you can revise all these things. आप इनको दोबारा से पढ़ सकते हो एनी वेयर यू फील, बट दीज आर दी वेरी बेसिक, और इसको हम बेसिक ही रखें तो बेटर है, बिकॉज जब हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे या हम मशीन लर्निंग का कुछ भी टूल यूज़ करते हैं, सो ऑल दीज टर्म्स कम्स मोर फ्रीक्वेंट in front of us. Oh, it's quite late in the night. Sorry for my yawning because I usually do not prefer to prepare all these session in the daytime. So whenever I'm having free time, I used to spend some of my time
for you people. So please take care of yourself. We are winding up here this session, as my this pen is also dying out. So I'm sorry, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था. नेक्स्ट टाइम आई हैव टू चार्ज इट. बट नेक्स्ट सेशन जो होगा वो टूल के ऊपर होगा, and that is Orange tool. You can download the Orange tool, install the Orange tool. Otherwise I'll tell you it's not a big deal, and we'll meet you soon. Thank you. Thanks a lot for your time, and keep learning.